afternoon, everyone, and a hearty welcome to this wonderful session of Katha, Upskill Advanced Teacher Modules. And today's session is just now Sonia was just telling it's about collaboration. So we started off with critical thinking, then we had Tada Mein Hai Maza, and then we had the other workshops. And right now it's about collaboration. क्या है collaboration? जिसको हिंदी में सहयोग बोलते हैं. In simple language, to work together या मिलजुल कर काम करना. Is it important? Can we do without collaboration? Can I work as an individual? Why is it so important for me to collaborate with others? इसके बारे में we're going to learn today. So we have Sonia Duggal with us. She's conducted several workshops. She's an author by herself. She has students spread across the globe, nationally, internationally, and then of course she's been conducting workshops for students as well as teachers. So today we have with us Sonia Duggal, who's going to cover about collaboration. So over to you, Sonia, and we start the session now. Thank you. Okay. तो अगर आपने देखा होगा यहाँ बहुत ढेर सारी आपको पोस्टर्स नजर आएंगे. तो हमने ऑलरेडी काफी 3 कवर कर चुके हैं. आज चौथा है इस सीरीज में. We started, so we've already covered 3 workshops. One was integration of stories with the curriculum. Second was क्योंकि टड़ा में है मजा. And the third was developing critical thinking. और आज बात कर रहे हैं हम again 21st century skills collaboration in the class. तो आज का जो हमारा विषय है वो है collaboration in the classroom. अब कैसे करें? तो हम इसके लिए भी कहानियां लेंगे और आप लोगों से इंटरैक्टिव वर्कशॉप करेंगे. मगर बाकी लोग जब हमसे बात नहीं करें तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Today the topic is collaboration. We've already covered 3 topics. So as we go forward, let's talk about collaboration. अगर आप देखें बहुत ध्यान से गौर से तो हम 21st century skills की बात कर रहे हैं. हमने critical thinking खत्म कर दिया है. Now when we are talking about 21st century skills, it's become very very important right now. 21st century skills बहुत जरूरी हो चुका है. We are talking about life skills. यहाँ बच्चों के कैसे life skills बनाने हैं उसकी बात हो रही है. तो जब हम life skills की बात कर रहे हैं वो एक classroom तक सीमित नहीं रहता है. It goes beyond the classroom. When we are talking about 21st century life skills, it is not just confined to the classroom. It goes beyond the classroom. The knowledge is easily available. I repeat myself because last time also we were talking because there is Google. So the information is relevant. What is important is what we do with that information. And are we able to see the right from the wrong, fact from the fiction? So this is a topic which we had already covered in critical thinking. पिछली बार जब मैंने बात किया था तो मैंने बात किया था कि कैसे इंफॉर्मेशन आजकल सबको अवेलेबल है. मगर अब हम उस इंफॉर्मेशन को क्या ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए. तो ये एक लाइफ स्किल है ना जो हमें रोज के मर्रा की जिंदगी में चाहिए. तो ये तो टॉपिक हमने कवर कर दिया. उसके आगे जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है कोलैबोरेशन. ये बहुत ज्यादा एम्फसिस हो रहा है इन सब चीजों पे 21st सेंचुरी स्किल्स पे. तो अब जब हम सेकंड टॉपिक कोलैबोरेशन पे जाते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं. वैसे तो अनामिका मैम और मैंने भी एक्सप्लेन किया कि कोलैबोरेशन क्या होता है, बट हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं कि आप कोलैबोरेशन क्या समझते हो, सहयोग का क्या मतलब है आप लोगों के लिए, और क्या वो क्लासरूम तक ही सीमित है. ये इंटरैक्टिव सेशन है तो प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करें. I'm asking you a question. What do you understand by collaboration? Is it only restrictive to classroom? Or is it something which we do every day in our lives? Collaboration means मिलजुल कर काम करने. Do together, something doing together, activity or anything else.
Right. So that is in a classroom that you are doing activities, but कोलैबोरेशन are का you doing मतलब है नो, एक साथ सभी का ये मिलकर काम रिस्ट्रिक्टेड करना, नहीं है और कि ये हम सिर्फ क्लासरूम में हमारे मैम घर करें, परिवार बट हम कहीं समाज पे भी स्कूल कोलैबोरेशन सब इस्तेमाल जगह कर सकते हैं। जरूर। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। हाँ, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट करिएगा, एक कोई बोल रहा हो तो दूसरा सुने, प्लीज। थैंक यू। हाँ, प्लीज स्टार्ट, वन जी पर्सन। जी मैम जी हाँ जी, आई एम फ्रॉम चिनार इंटरनेशनल एंड ये जो कोलैबोरेशन है इससे मुझे यही समझ आया कि कोई चीज मिलजुल के क्रिएट करना, कोई नई चीज, इट कैन बी डिस्कशन, इट कैन बी थ्रू एक्टिविटीज और समथिंग एल्स मैम। तो थैंक यू। जरूरी देर इज इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी क्रिएट समथिंग, जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त क्रिएट करते हैं, है ना। इफ यू लुक इन अ डे टू डे ऑल्सो, इट्स बेसिकली कोलैबोरेशन मीन्स टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है ना। यस मैम। तो आज सुबह से मैं ये सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में आज सुबह से क्या कोलैबोरेशन हुई है। जैसे कि आज मेरी बेटी को कॉलेज जाना था, तो किसी को मेट्रो पे ड्रॉप, मेरे घर में से एक इंसान गया मेट्रो पे उसको ड्रॉप करने, और मैंने जल्दी से टिफिन पैक किया, है ना। तो वो कोलैबोरेटिव भी तो काम है, घर में भी तो। गोल क्या था, उसको खाना बना के कॉलेज पहुंचाना। तो ऐसे हम रोज के हिसाब से भी कितनी कोलैबोरेशंस करते हैं, घर में भी और अपने मोहल्ले में भी करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा ना। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, परमजीत कौर फ्रॉम सत्य भारती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल फत्तूबिल्ला। मैम मैं बताना चाहती हूँ कि कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के काम में हेल्प करना, ये हम क्लास में भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो है उनको सिखा सकते हैं कि अगर मान लो किसी का मैथ अच्छा है तो वो दूसरे बच्चे को मैथ समझा दे, और किसी का लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है तो वो बच्चा जो है अब दूसरे बच्चे को लैंग्वेज में हेल्प कर सकता है। सिमिलरली खेल के मैदान में भी हमें एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ ही खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई जीत भी गया है तो उसे दूसरे के लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि हम हार गए हैं या हम जीत गए हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ उसको शेयर करना चाहिए। So और collaboration, परिवार in में भी other मैम words, Yes, okay, just collaboration. one second. Excuse me. Let me just, excuse me, just 1 minute. Can I just translate this into English and then I'll come back to you. Translate कर रही हूँ और उसके बाद वापस आते हैं. So, ma'am said that we can collaborate in many ways in a classroom where children help each other study, and this collaboration can also go into sports where children can help each other learn things. ओके, अब और कौन क्या शेयर करना चाहता है, प्लीज कंटिन्यू। मैम ग्रुप डिस्कशन इज मोर वन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन। मैम अभी ना मैं जब बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, मैंने अपने घर का एग्जांपल दिया, है ना। तो जब हम पहले हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में ले जा सकते हैं। कैन वी गिव रियल टाइम एग्जांपल्स? हाँ, आई वांट टू शेयर समथिंग। हम ऐसे कर I सकते agree हैं। with you. Yes, I'm Simha Javed. I'm from Khushi Rainbow Home. So collaboration is basically a chain. It is not cannot be done individually. The things, whatever, for example, if you are conducting a simple program in a school, also in a college or in a classroom, it has to be done with all the children have to be there. And so, if it is not a one-sided program, and all the teachers, everybody has to be involved in that. So the duty will be given to the individual so that the program can be conducted and that can be done successfully. Am I right? Yes, ma'am, you are absolutely right. If you see, we are collaborating right now between me and Amika and the Yeah. Katha team. We are all come together for this workshop. तो Exactly. अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो अभी भी हम कोलैबोरेट ही तो कर रहे हैं. Yes. I also want to bring it, जब हम बात करते हैं, we are not only talking about classroom collaboration, we are also talking about collaboration with the people we live, with the neighborhood people, the real life examples to meet a common goal. Isn't it? Because हमारी लाइफ में भी बहुत सिचुएशंस आती हैं जहाँ लोगों को इकट्ठा आना पड़ता है फॉर अ पर्पस.
तो अभी जो हम कहानी कथा की सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं वो इसी के बारे में है। तो अभी अनामिका मैम जो है वो हिंदी में कहानी सुनाएंगी और मैं अंग्रेजी में दिखाऊंगी। So when we talk about collaboration, it doesn't limit ourselves. We should not limit ourselves to a classroom but like, it is a real-time situation. We are teaching children how to come together for collaboration. For this purpose, we have a very interesting Katha story. I will be just displaying it in English while Anamika ma'am will be reading it out in Hindi. So give me a minute. Another very interesting point in collaboration is right now in this meet, we have people from Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Telangana, Andhra, and then we have from Varanasi, we have from Jharkhand, Uttar Pradesh, Delhi. इससे अच्छा collaboration और क्या हो सकता है? सारा भारत एक जगह आ चुका है, and we're all meeting together for a single cause that we want to benefit the children of our country. What can be better than that? So I'm going to read out the story मगरमच्छ, जिसको तेलुगु में मुसरी बोलते हैं, तमिल में क्या बोलते हैं எனக்கு தெரியாது, but whatever little I know, कन्नड़ा में भी क्या बोलते हैं ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but whatever I know right now I'm going to speak this out. हिंदी में ये स्टोरी मैं आपके लिए नरेट करने वाली हूँ, एंड आई थिंक इट्स डिस्प्लेड ऑन इंग्लिश, आपकी स्क्रीन पे इंग्लिश पे दिखाई दे रहा है। ये कहानी है मगरमच्छ की। सभी मुझे राजा कहकर पुकारते हैं। मैं अपने दादा दादी के साथ केरल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। एक दिन मेरे घर के पास के पोखर में मैंने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ का वहां रहना मुझे बुरा तो नहीं लगता था, पर मैं चाहता था कि वो हमारी मछलियां न खाए। मैंने एक पेड़ की आड़ लेकर ईंट मारी, पर मगरमच्छ तो झट पानी के अंदर उबक कर गुम हो गया। शायद रस्सी कुछ काम कर जाए। अपनी गौशाला में हम मोटी लंबी रस्सी से गाय बांधते हैं, पर दादाजी ने मुझे रस्सी लेने ही नहीं दी। फिर वह किसी काम से बाहर चले गए। बस मैंने झट रस्सी ली और पोखर पर पहुंचा। रस्सी की एक छोर मैंने पेड़ से बांधी और दूसरी छोर पर एक बड़ा फंदा बना दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैं पोखर के पास आ गया। मगरमच्छ वहीं था, फंदे में फंसा हुआ। मुझे देखकर गुस्से से मुंह खोला और मुझ पर झपटने की कोशिश की। खबर चारों ओर फैल गई। कई लोग आए। मेरे मास्टर जी स्कूल के बच्चों के साथ आए। ऐसा लग रहा था जैसे इनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसको ट्रांसफर करना इसको मुश्किल है, मतलब ओनरशिप चेंज कर रहा है। Can you mute yourself, please? Can you please mute yourself? भीड़ में कुछ लोग मगरमच्छ को मारना चाहते थे। मैंने कहा कि ये तो मेरा मगरमच्छ है और मैं इसे आजाद करना चाहता हूँ। लेकिन वे लोग कह रहे थे कि इसे तो मारना ही पड़ेगा। मैं अकेला क्या करता? दादाजी ने मोटी आवाज में कह दिया कि मगरमच्छ को कोई न मारे। वह मुझसे बोले, राजा अभी इसी वक्त इसे छोड़ दो। हमने तय किया कि हम मगरमच्छ को मंदिर के सामने वाले बड़े तालाब में दूसरे मगरों के साथ छोड़ देंगे। हमने अपने साथ एक लंबी सीढ़ी भी ले ली। मगरमच्छ को हम तालाब के पास ले आए। हमने तालाब के साथ सीढ़ी लगा दी और 8 लोगों ने सीढ़ी पकड़ी। हमने मगरमच्छ को आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतार दिया। फिर हमने मगरमच्छ की रस्सी काट दी और वह पानी में तैरने लगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं अपने पिछवाड़े के पोखर पर गया। वहां क्या देखता हूं? मेरा मगरमच्छ वापस आ गया था और मजे से पोखर के किनारे धूप सेक रहा था। ये थी कहानी। Sonia ma'am, over to you. You're on mute, Sonia ma'am. I hope you enjoyed the story. मजा आया? Yes, ma'am. पिछली बार भी हमने की थी, बट हमने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की थी इसमें, और आज हम क्या बात कर रहे हैं? कोलैबोरेशन की। तो आप बता सकते हैं इसमें कोलैबोरेशन की क्या बात हो रही है? किसने किसके साथ कोलैबोरेट किया?
इसमें कोलैबोरेशन जो हुआ है सर दादाजी ने किया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी बात लोग मानेंगे नहीं, बट जब दादाजी ने भारी आवाज में बोला तो सबने फॉलो किया। आई थिंक ये कोलैबोरेशन हुआ यहाँ पे। So there was a collaboration between the grandson and the grandfather. तो बहुत बढ़िया। और बताइए, और भी कोलैबोरेशन हुआ इवेंचुअली? यस मैम, गांव वालों ने किया उसको तालाब में फेंक के एक साथ सब जो सीढ़ी पे आए। बिल्कुल। Everybody from the village got together. Otherwise, they would not have been able to get the crocodile to the tank. Isn't that true? So there was a collaboration which happened. क्या collaboration के बिना हो सकता था काम? नो मैम, नो Could मैम। not be done without collaboration. So you think we do need people around us, isn't it? हमको लोग चाहिए होते हैं ना हर वक्त। Even in a classroom scenario, अगर आप देखिएगा, टीचर्स की कुछ स्ट्रेंथ होती है। कई बार दो टीचर्स एक ही क्लासरूम में होता है, किसी को म्यूजिक गाना बहुत अच्छा आता है और किसी को गाने के लिखना बहुत अच्छा आता है, और फिर जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। Am I correct? Yes. So the collaboration happens not just outside, it also happens inside the classroom within the teachers. बहुत शोर हो रहा है। मनदीप मैम, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। अनामिका, कैन वी म्यूट देम ऑल? प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, बट इट इज इम्पैक्टिंग एवरीबडी। प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इस कहानी में और तरह से भी क्या कोलैबोरेशन हो सकता था? ये एक प्रश्न है मेरा। आप क्या कोलैबोरेट कर सकते हो किसी और तरह से भी? आप बोल सकते हो या प्रॉब्लम? अनामिका, क्या वो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? I'll unmute. I'll unmute. क्या किसी और तरह से भी कोलैबोरेशन हो सकता है? कैन पीपल कोलैबोरेट इन अ डिफरेंट वे इन द स्टोरी? एनी आइडियाज? You can put it in the chat box in the meanwhile. Till you get unmuted, you can put it in the chat box. Anyone who has an idea, please put it in the chat box. We are able to see the chat box. Raise your hand and I'll unmute you. Anyone who wants to share? आप प्लीज अपने आइडियाज शेयर करिए इस कहानी को लेके, और किस तरह से कोलैबोरेशन हो सकता था। A simulation of new crocodile with the previous one, says Mohammad Sabdar ji. Okay. Fantastic. Anyone else? Anyone else? Any other point? तो अभी जब हमने बात किया है इतना कोलैबोरेशन का, तो इसको अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो वो कुछ इस तरह का है। कोलैबोरेशन होता है एक दूसरे के साथ काम करना एक गोल तक जाने के लिए, जैसे कि दादा और पहले पोता, the grandfather and the grandson came together to make people change their mind. पहले तो उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया और लोगों को सही सलाह दिया। उसके बाद the second step was that all the people came together to release the crocodile into the water. तो अब आप देखिए, collaboration is working together to reach a goal. So अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोलैबोरेट किया। तो आप देखें, पहले लक्ष्य बहुत जरूरी है ना।
तो इसलिए कोलैबोरेशन इजी हो जाती है। गोल बहुत जरूरी होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि कहानी में हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जब लर्नर्स होते हैं या हम हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल और दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कहानी में दोबारा जाऊं तो आप देखिएगा कि अचानक से लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी समझने की चीजें, है ना? लावण्या, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। सो अब क्या होता है कि if you just look at the story, the people of the village became very flexible and they started understanding the grandsons and grandfathers perspective also. सही बात है या गलत बात है? यस मैम। है ना? ये बहुत शोर हो रहा है मैम, आज। सही बात है। तो लर्नर्स जो हैं वो दे वर्क टुगेदर, और सबकी, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं, तो इसमें लीडरशिप स्किल्स भी तो निकल कर आती है ना। संध्या, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? Is there any way to mute people? मैम, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये आज बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये संध्या मैम, बिकॉज कुछ लोग मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उनको मैं बोल रही हूँ। So the learners learn to work together with different kinds of people and develop leadership skills. अब कोलैबोरेशन में यूजुअली लगता है कि लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं होती है। अब जैसे जो आप लोगों ने एग्जांपल्स दिए, स्पोर्ट्स के दिए या क्लासरूम सिनेरियो में दिए, तो उसमें एब्सोल्युटली लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रही है ना। तो इसमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रही है ना। सो ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कितना इम्पोर्टेंट है कोलैबोरेशन। अब अगर आप कोई पॉइंट्स डालना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम टू ऐड। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग टुडे। जब मैं क्लासरूम में पढ़ाती थी तो क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो साथ में टीचर थी, को टीचर थी, उनको गाना बहुत अच्छी तरह से बजाना आता था, मुझे लिखने का शौक था, और जो हमारे बच्चे थे वो डांस सीख रहे थे कहीं बाहर। तो जब हमने एक एनुअल डे का शो करना था तो सब बच्चों ने अपने डायलॉग्स खुद लिखे। हमने एक म्यूजिकल ड्रामा किया था उस वक्त, और बाकी लोगों का क्या किया, तो हम लोग सब एक ग्रुप की तरह कोलैबोरेशन में काम किया। तो हमने क्या किया, सबकी स्ट्रेंथ्स पे काम किया, और इट वाज एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल हमने म्यूजिकल ड्रामा पेश किया था इंसेक्ट्स के बारे में, और एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आज इस बात को 15 साल हो गए हैं, मुझे अभी भी ये बताते हुए बहुत अंदर से खुशी होती है। So basically, when we are talking about collaboration, we are not just talking about children collaborating. Even teachers can collaborate with the children. I was giving you an example from my school days when I was a teacher, and we created a musical drama where the children, had their own strengths. Somebody could dance better, somebody could do some activity better. I was the creative person, so they were drawing for us, and my co-teacher was musical minded, so she set music to the songs which I wrote. So now what I'm saying is we are learning. It was a learning experience, not just for the children, but for us as individuals, for me and my co-teacher. This is 15 years back, but I still recall it very, very well. And it really warms my heart even today. And I learned a lot in the process.
तो जब हम बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन की, तो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि आपका काम ये नहीं है कि आप डिक्टेट करो, तुम दो काम करो। हम भी पार्ट ऑफ दैट कोलैबोरेशन होते हैं। एज टीचर्स वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कोलैबोरेशन, एंड इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो। ये हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो आप इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओवर टू यू, बट प्लीज एक एक करके बोलिएगा। अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, और इसके बाद हम शुरू करेंगे कैसे हम कोलैबोरेशन इन द क्लासरूम करेंगे विद दिस बुक क्रोकोडाइल। तो बट अब अपने विचार बताइएगा। जी मैम, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी। मैम, एक एक्टिविटी मैंने कराई थी क्लासरूम में। मैंने बच्चों को इंडिविजुअली बोला था कि वो हम ट्रैफिक रूल्स पे एक्चुअली कर रहे थे। मैंने उनको बोला था कि आप इसको ड्रॉ करो और लिखो। इस पे ट्रैफिक रूल्स पे आप लिखे कि क्या होता है अगर हम फास्ट स्पीड में गाड़ी चलाए या बाइक चलाए या विदाउट हेलमेट, और आप उसको लिखे भी और ड्रॉ भी करें। एंड मैंने क्या देखा कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ड्रॉ द पिक्चर। उन्होंने लिखा था बट वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। एंड नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने उनको उनके ग्रुप्स बनाए और उनको वही एक्टिविटी मैंने ग्रुप में दी, और फिर एक चार्ट दिया उनको, और उन्होंने वहां से क्या किया कि उन्होंने ड्राइंग भी की थी, उन्होंने वो अच्छे से भी लिखा था। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि कोलैबोरेशन में ये जो है कि इन्होंने मैम 1 मिनट रुकना। अमन और मैम प्लीज अपने आप को म्यूट करिएगा। हाँ प्लीज बोलिएगा, कंटिन्यू। जी मैम, मैंने फिनिश किया ही था कि उसके बाद मुझे लगा कि ये जो है कि ग्रुप एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे किसी पॉइंट में वीक होते हैं, एक्चुअली वो वीक नहीं होते हैं, उनको वो डरता रहता है कि अगर हम कुछ करें क्या उसको एक्सेप्ट करें सामने से, और जो वही एक्टिविटी अगर वो ग्रुप में करें तो उनको लग रहा है कि ये एक ग्रुप वर्क है, किसी एक पे नहीं जाएगा कि इसने गलत किया है। जी मैम, थैंक यू। Sonia, I would like to just add a question from Sheikh Abdul Samad ji. In the chat box, it's given. Could you tell difference between collaboration and cooperation? Is a question by Sheikh Abdul ji. So Sonia, please take it up. Anamika, I would request you if you could just translate this for the teachers first, and then we'll go on to this question, collaboration. Sure, absolutely. So she just shared something, ma'am, and she was talking. So I was just wondering if you could translate it for the teachers. She was talking about an activity which was taken place in the classroom. So what happens in the classroom is that she's saying that she did an activity in the classroom regarding traffic rules, and then children were good at drawing, some were not, but then they came together, and I realized there's nothing like this child is intelligent and this child is not intelligent. All right, so we worked together. And I realized that some children, especially the shy ones, work better in groups. And they come out like, they express themselves better. Anything people would like to add to that? I think that's a beautiful example. So, ye Akhtar ma'am ne diya. Now the question is, what is the difference between collaboration and cooperation? Anybody would like to add? This is very interesting. I have an answer, but मैं आपसे जानना चाहूंगी। कोऑपरेशन के बिना कोलैबोरेशन हो सकती है क्या? No ma'am. Madam, cooperation and collaboration, I think same meaning, but I think some differences also, very mild difference. Like cooperation means to help someone to doing something, and collaboration to help do our share work. I mean, जैसे हम किसी ऑफिस में जब काम करते हैं, अगर हम क्रोकोडाइल वाली कहानी का एग्जांपल दें, अगर जो विलेजर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करते और वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझते, दादाजी का और बच्चे का, तो क्या कोलैबोरेट करते? नो नो मैम। एग्जैक्टली।
अगर वो नहीं समझ पाते कि ये क्यों कह रहे हैं तो फिर नहीं करते हो। So the cooperation was needed for the collaboration. Am I correct? Yeah, yes, yes. So even in the story, right? So I hope I'm able to answer the question there. Yeah. So actually, if you see, even our politicians, they all collaborate. Cooperation होता है कि नहीं, वहां पे मात खा जाते हैं. You know, a very simple example. कि हम लोग एक टीम में हैं, लेकिन मिलजुल के यदि काम नहीं कर रहे हैं, सब लेफ्ट राइट अप डाउन जा रहे हैं, सो जस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चले जाते हैं, काम नहीं हो पाता है. कोलैबोरेशन में ही काम होता है. जब मिलजुल कर कोऑपरेशन के साथ कोलैबोरेट टीम मिल के काम करती है, तब मजा आता है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. You cannot, so the goals need to be same, right? First you have Yeah. to cooperate and then collaborate to reach your goal. It's very simple. Hanji. Is something related to thinking, concurrence of the same purpose, and collaboration is more to do with physical action related. Correct. That's also correct. Yes. That's very true. Absolutely. बचड़ा तरला लिया तेरे तरले करके सारी तेरे लागे बैठी रही ने कराई दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇ ਭੈਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਨॉइस ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਊਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ. I request you to please mute yourself. कोई गप्पे शप्पे मत कीजिए. Our team, please be alert, and it'll be so nice if you can just keep muting them. It's very important. Otherwise, we are spoiling the whole thing. इतना बढ़िया जा रहा है. Thank you so much. मैं अपनी तरफ से करना की कोशिश कर रही हूँ. ओके, अब हम बात कर रहे हैं पेयर शेयर. अब मैं आपको पता है क्या होता है, जब मैं क्लासरूम सिनेरियो में देखती हूँ तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि तुम दो बच्चे इकट्ठे काम करो, तुम दो बच्चे इकट्ठे काम करो, बट काम क्या करो? मतलब हमने दो बच्चों को तो बिठा दिया, बट काम क्या करो, है ना? सो यूजुअली वी टीचर्स नीड टू थिंक थ्रू हाउ वी वांट द चिल्ड्रन टू कोलैबोरेट इन अ क्लास. ऑल राइट. तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता चले कि हम बच्चों को किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे जिससे बेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आए. करेक्ट. So I'm giving you a few examples. मैं यहाँ थोड़े से examples लेकर आई हूँ. Again, कहानी मैंने crocodile ही रखी है. तो ये बहुत जरूरी है कि ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कोलैबोरेशंस होती हैं. ठीक है. अब आप क्या करेंगे कि क्लास को पेयर्स में डिवाइड करेंगे. यू कैन मिक्स एंड मैच द पेयर्स. सब दोनों एक स्ट्रेंथ्स के ना रख के अलग अलग स्ट्रेंथ्स के बच्चों को इकट्ठा लाइएगा. उनको एक क्वेश्चन या सीरीज ऑफ क्वेश्चंस भी दे सकते हो. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट पहले मैं हिंदी में बोलती हूँ, फिर मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ. ठीक है. तो पहले क्या होता है कि आपने क्वेश्चंस दिए, हर बच्चे को कहा कि आप पहले उस क्वेश्चन को इंडिविजुअली आंसर करो. ठीक है. फिर जो आपका पार्टनर है उसके साथ वो आंसर्स को कंपेयर करो और फिर उस पर डिस्कशन करो कि बेस्ट क्या है. तो इसका मतलब हम दो पर्सपेक्टिव्स को मिला के एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं, गोल. रिमेम्बर. और वो जो गोल है वो शेयर करेंगे या लिखेंगे अपनी नोटबुक में और फिर उसके बाद क्लासरूम में शेयर करेंगे. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन है. ठीक है. जिसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड कोलैबोरेशन है. ये नहीं कि दो बच्चे इकट्ठे हो जाओ और काम करो. ठीक है. आई रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश. Divide the class into pairs. Now you have to give a series of questions to each child. The child in that pair has to answer the question or questions and then compare it with their partner. And finally, after discussion, share their common thoughts that this is what we think and give a very elaborated answer on that. That is how a pair share will be successful. And it will be like, a very good pair share. If you look at it, the question is, what might have happened if Raja had not sought his grandfather's help?
So you all might have different viewpoints here. अब जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्या होता कि अगर राजा ने अपने दादा की मदद नहीं ली होती, तो हो सकता है सब लोगों के अलग अलग आइडियाज हों, तो सब लोग अपने आइडियाज अलग अलग लिखोगे, बताओगे, फिर डिस्कस करेंगे और फिर वो सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पेयर शेयर का। तो आप बताना चाहेंगे कि क्या होता कि अगर राजा ने ग्रैंडफादर की हेल्प नहीं ली होती? कुछ लोग बोलिएगा, प्लीज शेयर योर आंसर्स, एटलीस्ट कपल ऑफ देम। जी अगर माता ने अपने मतलब जो मतलब पोता था उसकी अगर हेल्प नहीं की होती तो फिर क्रोकोडाइल मर सकता था, उसकी जान को खतरा था, ये चीज हो सकती थी। और क्या कर सकता था राजा अगर ग्रैंडफादर की हेल्प नहीं लेता? तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी ला सकते हैं। ट्विस्ट ये हो सकता था कि राजा को सडनली लीडरशिप स्किल आ जाती, दादाजी की क्वालिटी ही व्हेन यू टेक ओवर, कभी कभी ना हालात ऐसे आते हैं कि यू हैव टू टेक ओवर द सिचुएशन एंड देन यू बिकम द लीडर, सो देन सडनली राजा कुड हैव टेकन ओवर, डोमिनेटेड द होल सिचुएशन एंड ही वुड हैव अर्ज्ड ऑल द पीपल ऑफ द विलेज टू कम टुगेदर, सब लोग मिलके दे वुड हैव ही वुड हैव प्रोबेबली मोटिवेटेड ऑल ऑफ देम टू यूनाइट एंड वर्क फॉर अ कॉज। Sharma ji, can you please be muted? Neeru Sharma ji, can you please mute yourself? Thank you. So that could have been another twist in the story. कहानी में थोड़ा twist ला सकते थे इस तरह। अब एक और अब इसका नेक्स्ट मैं चलती हूँ कि कैसे आप राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? आप एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, फिर स्मॉल ग्रुप्स में स्टूडेंट्स टर्न लेंगे अपने आइडिया शेयर करने के लिए। जब तक जो हम एक्चुअली कर रहे हैं इस वक्त, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा और आइडिया है, और आइडिया है, तो इसको कहते हैं राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसमें हम एक दूसरे के आइडियाज पे बिल्ड भी कर रहे हैं, है ना? तो इट्स नॉट लाइक मैं सही तुम गलत। अगर अभी तक आपने नोटिस किया हो, हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि आप अपने विचार व्यक्त करिए, है ना? सो देयर आर नो राइट्स एंड रॉन्ग, और हम दूसरों के स्टूडेंट्स के आइडियाज पे बिल्ड अप भी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, how can you take care of wild and stray animals around your neighborhood? हम कैसे वाइल्ड और स्ट्रे एनिमल्स की मदद कर सकते हैं हमारे आसपास? ओवर टू यू टीचर्स, बताइए, थोड़े आइडियाज दीजिएगा। ओवर टू यू मैम। प्लीज टीचर शेयर करिएगा कैसे बलजिंदर आप जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? Baljinder ji, want to say something? Please mute yourself otherwise, please. Thank you. वाइल्ड एनिमल्स की मदद करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आसपास रहते ही नहीं। डोमेस्टिक एनिमल्स को कुछ कर सकते हैं, लेकिन शेर, बबर, नहीं, वाइल्ड एनिमल्स में मंकीज भी आते हैं सर, जो आजकल हमारे बंदर यहाँ, स्क्विरल्स, मतलब छोटे भी हैं, काफी जो हैं जानवर हमारे आसपास ही होते हैं ना। मैम क्या प्लीज रिपीट करेंगे, आप क्या बोल रहे थे प्लीज मैम? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ वाइल्ड एंड स्ट्रे एनिमल्स अराउंड योर नेबरहुड? कई तो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स हो गए, ठीक है, कैट्स हो गए, है ना? तो वाइल्ड एनिमल्स भी कुछ कुछ दिख ही जाते हैं। कई कई इलाके होंगे जहाँ सांप भी होते होंगे। और ये हुआ एक्चुअली मेरे यहाँ दिल्ली में कि एक फ्लैट में सांप था और फिर उल्लू भी थे मेरे यहाँ पे। तो फिर हमने उनको फोन किया, वाइल्ड वाले लोगों को, और फिर वो उनको, मतलब ये नहीं कि जैसे क्रोकोडाइल था मार डाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने उनको जाके दिया सही जगह पे। सांप को भी ऐसे ही हुआ था। तो मतलब अब अगर I देखिएगा think तो another simplest thing, Sonia ma'am, another simplest thing is by not harming them. One help we can do is by not harming them. वेरी गुड,
ये तो हमेशा होता है ना कि चिड़िया को मार दिया या स्क्विरल को मार दिया, तो ये भी तो मतलब सब चीजों का ध्यान रखना है। इस वक्त हमारे आसपास बहुत कुत्ते हैं जो ठंड में, हम बहुत ठंडी जगह में हैं इस वक्त, तो सब लोगों ने कोट देने शुरू कर दिए हैं उनको, हाँ, उनको जिससे उनको ठंड स्वेटर बना, उनके लिए स्वेटर भी बना दिए गए मैडम काफी जगह, है ना। हाँ हाँ, स्वेटर टाइप भी, टोपी भी बना रखी है कुछ लोगों ने। हाँ तो मैंने भी मैं अभी एक्चुअली कल मैंने भी एक बेडशीट थी मेरे पास में, तो पास में है 2-3 उनके यहाँ है डॉग्स, उन्होंने छोटा सा होम सा घर सा बना रखा है उनके लिए, तो मैंने भी वहाँ पे एक बेडशीट दिया कि अब इनके यूज में हो जाएगी वो। वेरी नाइस। अच्छा टीचर्स उन्होंने यहाँ व्यवस्था ना कर रखा हम है। एक्चुअली वही है, वी आर बिल्डिंग अप ऑन आइडियाज। अभी जो आइडियाज आप दे रहे हो तो हमें भी आइडियाज आते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। मैं अभी वाराणसी में थी घाट पर, तो एक आदमी कोई सो रहा था और उसके मुंह, मेरे पास पिक्चर भी है जहाँ दोनों कुत्ते उनके साथ अंदर ब्लैंकेट में सो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कैसे नेचर के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। I was in Varanasi and there was these 2 dogs sleeping along with a person. And I just felt that how beautifully, we can coexist with everybody. So it's very important that we talk about all this. अगर हम writing activity करें तो you can also give a writing task to the children, जिसमें वो कहानी को रीराइट करें with a different ending, डायलॉग्स लिखें और फिर उसको ड्रामा की तरह प्रेजेंट करें। तो ये भी कोलैबोरेशन ही तो है। अभी नहीं, बाद में। सो आई होप ऑल दिस इज वर्किंग फॉर यू। जी मैम, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को हम थीम देंगे कि आपका ये थीम है वाइल्ड लाइफ, लाइक वाइल्ड एनिमल, सॉरी मैम, और उन पे हम बोलेंगे बच्चे को कि आप इन पे बोलिए कुछ, लाइक ये कहाँ रहते हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये बस्ती में क्यों आते हैं। थीम हम रखेंगे वाइल्ड एनिमल्स, इसी के रिलेटेड उनको हम बोलेंगे कि आप एक एक वर्ड उनके रिलेटेड आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, बट इसमें ये भी होता है कि हम बात करें कोलैबोरेशन की, तो जहाँ बच्चे इकट्ठे काम करें, तो अगर आप इस एक्टिविटी को एक्सटेंड करके मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी या पेयर एक्टिविटी बना सकें तो है ना। वही ना मैम, वो हम छोटे ग्रुप्स या पेयर्स में बच्चे को रखेंगे तो वहाँ बिल्कुल पर हम ये कर सकते हैं मैम। एब्सोल्युटली मैम। तो ये तो मैं थोड़े से चंद आइडियाज ओपन अप करने के लिए एक्टिविटीज हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। मैं अभी और भी एक्टिविटीज बताने वाली हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अनामिका मैम आप बात करोगे? हाँ जी, यस श्योर श्योर। तो आप सबको ये जान के बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारी जो स्टोरीज हैं जो आप अभी सुन रहे थे, हमारे जो पोर्टल पे जो कहानियां हैं, बुक्स भी हैं, पोर्टल पे भी हैं, वीडियोस भी हैं, बट इसके अलावा अभी ये कहानियां एलेक्सा में भी अवेलेबल हैं। एंड इतनी इंटरेस्टिंग है ये कहानियां, ये अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में आपको चाहिए या कन्नड़ा में चाहिए, तमिल में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, मराठी में चाहिए, अलग अलग भाषाओं में कहानियां अवेलेबल हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, स्पेशली विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स इतना अच्छा ये स्टोरीज यूज कर रही हैं क्लास में। आप वो चंदा मामा की स्टोरी प्ले कर देती है टीचर, और फिर यदि टीचर को कुछ नॉलेज चाहिए कि चंदा मामा का डिस्टेंस का कितना है, अर्थ से चंदा मामा का डिस्टेंस कितना है, so they are just using Alexa left, right, center. Majority of the teachers, either they have Echo Dot and they use Alexa through Echo Dot, and if they don't have, everyone has downloaded Alexa app on their mobile. Very simple, download Alexa app on the mobile. Very simple commands that Alexa play Katha story. You can ask the name of the story, and you can also tell the language in which you want the story. It's as simple as that. The minute you have that, and it starts playing. So it's a very, very interesting way how we are playing the story. A sample, probably I'll say, like if I have downloaded Katha and I have given parental permission, I can just say, Alexa, open Katha story and play I Am An, and the story will start playing. And you'll listen to it, how it plays. मैं हूँ आन। नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? पश्चिमी घाट के जंगल में एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां आन नाम के एक विशेष हाथी का जन्म हुआ था। ये कहानी
कथा के 300M थिंक बुक से ली गई है। ये कहानी मीनाक्षी भारद्वाज ने लिखी है और स्वराली एलेगांवकर ने सुनाई है। अब हम आन की अविश्वसनीय कहानी के बारे में जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? आइए मिलकर हम उसके साहसिक कार्य को सुने। अक्टूबर का महीना है। पश्चिमी घाटियों के घने जंगलों में एक नन्हे हाथी का जन्म हुआ है। उसका नाम है आन। ये उसकी कहानी है। मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मेरे झुंड में एक मादा हाथी और शिशु है। दादी रानी एक अनुभवी मादा हाथी है। वो हमें राह दिखाती है और हमारी रक्षा करती है। वो हमारे झुंड की माँ, मौसी और दादी है। दादी रानी नन्हे शिशुओं के साथ बहुत नर्म है, लेकिन अगर बाघ आ जाए तो अरे बाप रे, खतरनाक बन जाती है। जब मैं पैदा हुआ, मैं बिल्कुल नन्हा सा, कमजोर और झुर्रियों वाला था। दूसरी मादा हाथियों ने मेरी माँ की मदद की, लेकिन फिर भी मुझे जन्म देने में वो काफी थक गई। थकान से उनकी गर्दन लटक गई और पैर कमजोर हो गए। फिर भी उन्होंने मुझे अपने पेट के नीचे सुरक्षित रखा। मेरी बहन मेघा ने सुंड से सहलाकर मेरा स्वागत किया। जन्म के समय मैं 3 फुट ऊंचा था और मेरा वजन था 75 किलो। लेकिन फिर भी जब हमारा झुंड चलता, मैं हर कदम पर लड़खड़ाता। 2 दिन लगे मेरी टांगों में ताकत आने में और पूरे 3 दिन लगे मुझे माँ के स्तन ढूंढने में। मैंने अपने नर्म मुंह से दूध पिया। शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपनी इस सुंड के साथ क्या करूं, लेकिन जल्द ही मैं सीख गया और दूध पीते समय इसके साथ खेलने लगा। और जब मैं अकेला होता तो बैठे बैठे इसे ही चूसता। वैसे मैं ज्यादा वक्त अकेला नहीं होता था। मैं तो कभी मासियों का, कभी दादी रानी का, जो हमारे झुंड की नेता थी, और कभी अपनी बहनों का दूध पीता था। 1 वर्ष का होने से पहले ही मैंने शाक पत्तियां खाना शुरू कर दिया था, लेकिन दूध मैं 4 वर्ष का होने तक पीता रहा। मैं तो पूरे झुंड का, खासकर अपने भाई और बहन का दुलारा था। उन्हें देखकर मैंने खाना खाना, अपनी सूंड का इस्तेमाल करना, कई बार तो इसमें गांठ भी लग जाती, और अपनी पीठ पर लोटना सीखा। मैं तो माँ के मुंह से भी खाना चुरा लेता। फिर मैंने जाना कि बड़ों के मुंह को सुंड से छूना अभिनंदन। सॉरी, ये बंद हो गया। That's okay, we got the gist, I think. मैं हूँ आन। आगे बढ़ ही जाता अगर मेघा मुझे गुदगुदाकर नहीं उठाती। मेघा कहती, मैं बहुत चंचल हूँ, सभी नन्हे हाथी ऐसे नहीं होते। जब बड़े हाथी सोए होते, मुझे उन पर चढ़ने में बड़ा मजा आता और आसान होने लगा था। आखिरकार एक दिन दादी रानी ने मुझे अपने झुंड से अलग कर दिया। मैं तो वापस आना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। मैं कुछ दिन उनके आसपास मंडराता रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़े नर हाथियों के साथ जाने लगा। मैं समझता हूँ, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मादाओं को झुंड में रहने की
आवश्यकता होती है। हाथी का वजन आपकी स्कूल बस के बराबर हो सकता है, 5000 किलो तक। हाथी के दांत का वजन लगभग 3 किलो तक हो सकता है। हाथी अपनी सूंड से सांस लेते हैं। तो आपने सुनी हाथी की कहानी? जी, yes. तो अगर आपने देखा हो इस कहानी में भी, सो पीपल हु आई वाज नॉट एबल टू शेयर द इंग्लिश टेक्स्ट विथ यू because I was playing. So you can download this file is available on the portal. The story is available. People who could not understand because it was in Hindi, you can easily get the story from learn.katha.org. You can go on, log in, and then get the story from there. So this was just an example how we are using Alexa also. These stories are not just in Hindi, but other languages as well. So please don't think that they are only in Hindi. They are available in other languages like Anamika, English, of course, I know. What are the other languages? We have it in Telugu, Kannada, Tamil, Odia, Assamese, Gujarati, different languages. And right now, even Sanskrit is getting recorded. So very soon, Sanskrit as well. So please go through the story. It's about how elephants live in community and work together. So that was the gist of the story which I just told you. So again, if you noticed, कि यहाँ पे कोलैबोरेशन और टीम वर्क की बात हो रही है जैसे हाथी रह रहे हैं। आप मानते हो इस बात को? यस सब मैम। लोग? हाँ। और फिर इसके बारे में ना आप टॉक शो कर सकते हो, जैसे कि हमारे और हाथियों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, हाउ कैन पीपल लिव इन हार्मनी विद एलिफेंट्स? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एलिफेंट्स के साथ कैसे हम इकट्ठे रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो आप एक पूछ आंसर कर सकते हो इन अ क्लासरूम सिनेरियो। ठीक है, तो इस तरह का टॉक शो कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं क्या करती थी जब मैं टॉक शो की बात कर रही, ये नहीं कि जो आपके मन में आ रहा है, अभी तो हम ये कर रहे हैं कि अच्छा आपके कोई विचार हैं आप बोलिएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, डस्टर तो सभी के पास होता है एक फिजिकल क्लास में, या कुछ भी टॉय, तो बच्चे बहुत इससे क्या एक तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता है क्लास में। डिसिप्लिन ऐसे नहीं कि नहीं बोल सकते, तो बच्चे अपनी चीजों के लिए ना वेट कर रहे होते हैं, नहीं तो सब भी इकट्ठा बोलना शुरू कर देते हैं। बट जैसे ही आप एक डस्टर या कुछ भी टॉय भी दे देंगे ना, तो वो वेट करेंगी कि अब हमें बोलना है, जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं। तो इस तरह से आप टॉक शो कर सकते हो क्लासरूम में अराउंड दिस स्टोरी। सिमिलरली मैं, और अभी जैसे मैंने 3 एक्टिविटीज की, ये और चौथी एक्टिविटी है विद अ डिफरेंट स्टोरी। एक और है जो शुरू में किसी ने बोला था, पीयर टीचिंग की कोलैबोरेशन। तो अब इसमें क्या है, आप हर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट दे सकते हो और उसको बोलोगे कि इस बारे में आप प्रिपेयर करके आओ, और फिर वो ग्रुप्स में भी आप मूव कर सकते हो, या इंडिविजुअली एक, अगर बहुत जैसे बच्चे कॉन्फिडेंट है तो पूरी क्लास को भी पढ़ा सकते हैं, पर छोटी क्लासेस में ग्रुप वाइज कर सकते हैं कि अच्छा आप फैमिली की बात इस ग्रुप में करो, दूसरा बच्चा किसी और चीज की बात करेगा एक छोटे छोटे ग्रुप में, और फिर वो सब लोगों के साथ शेयर करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे। So this is a very good activity. You can do a flip class kind of a situation where children prepare about a topic and speak about it in a group to begin with, and then of course they can do, older children can do it like a flip class where they take the entire session. So here teachers become facilitators. So it's very good. So here you can highlight the key events in the story, talk about Aan. You can also talk about family, community, belonging. तो अगर आपने देखा हो कुछ टॉपिक्स यहाँ आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि आप आन के बारे में बात कर सकते हो, आप फैमिली के बारे में बात कर सकते हो, कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हो, बिलोंगिंग के बारे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि कैसे आपको अपनी फैमिली में सही लगता है। तो ये टॉपिक दे सकते हो दूसरे दूसरे बच्चों को, और जिसके बारे में वो प्रिपेयर करके आएंगे और फिर बात करेंगे। आई होप इट्स वर्किंग वेल।
कोई प्रश्न है आप लोगों के पास? ये मुझे एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, गैलरी वॉक। इसमें आप क्या कर सकते हो कि बच्चे अपना अगर हाथी पे रिसर्च की है तो वो अपना काम सारा डिस्प्ले कर सकते हैं बोर्ड पे, और उसके बाद बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में चल के वो जो डिस्प्ले किया है चीजें उसके बारे में डिस्कशन करके उसका फीडबैक कि हमें ये समझ में आया, इसमें ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, उसके पॉइंट्स नोट करेंगे और आके फिर प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे एक जगह पे स्थिर होके बैठना नहीं चाहते तो उनकी क्लास मूवमेंट भी तो हो जाती है ना। तो इस तरह से आप इनोवेटिव एक्टिविटीज कर सकते हो क्लासरूम में। So gallery walk is that students display their work and then small groups move around and then मैम discuss. प्लीज एक बार फिर से ये कहोगी एक्टिविटी? हाँ बिल्कुल बताते हैं ना। मैम तो प्लीज आप एक बार फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रही हूँ दोबारा से। मैं जरा अंग्रेजी में समझा दूं फिर मैं आ रही हूँ वापस हिंदी में, ठीक है? So you can display students' work and it can be questions also. Like the teachers can put questions on the board. It cannot only be students' work. And then the children go in groups and discuss and answer the questions, or discuss the display which is in separate places on the wall. So children move around. There is a lot of movement also, but there's also serious discussion which happens. And then they come back, consolidate their answers, and then present it to the classroom. So this is a very interesting activity, and to engage children and make them feel very important, that all opinions matter. And also when children really want to move around and not sit in a classroom, then also it's a very useful activity. मैं अब ये पूरी दोबारा हिंदी में रिपीट कर रही हूँ कि इसमें क्या कर सकते हो आप, स्टूडेंट वर्क भी डिस्प्ले कर सकते हो, आप टीचर्स क्वेश्चंस भी लगा सकते हो बोर्ड पे। एक तो हम बहुत बोरिंग तरीके से दे देते हैं ना, या आंसर करो। अगर बोर्ड पे क्वेश्चंस लगाए हैं तो हर बच्चे पेयर्स में या ग्रुप्स में जाके डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आंसर करेंगे। और या अगर कोई स्टूडेंट्स ने काम डिस्प्ले किया है तो ग्रुप्स में जाके उसको एनालाइज करेंगे, क्रिटिक करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, फिर आके अपने विचार नीचे आके शेयर करेंगे पूरी क्लासरूम के साथ। तो ये होती है गैलरी वॉक। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बच्चे एक ही जगह पे सारा वक्त बैठना पसंद नहीं करते, तो थोड़े मूवमेंट भी हो जाती है और ये बहुत एनकरेजमेंट होता है कि एक एक जैसे एग्जीबिशन नहीं होती कि जा जा के देख रहे हैं और उस का समराइज कर रहे हैं या बता रहे हैं। सर ठीक है, आई होप मैं आपको ठीक से बता पाई। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो ये काफी इनोवेटिव एक्टिविटीज हैं जो आप अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में कर सकते हैं। थोड़ी और तरीके हैं, कुछ मैंने मेंशन किए हैं। पेयर शेयर जो हमने बात किया था शुरू में, रीडर्स थिएटर। अब ये क्या होता है, पहले वो नहीं होता कि किताब खोल के, एक तो होता है ड्रामा कि याद करके आप ड्रामा करो, एक होता है किताब खोल के आप पढ़ भी तो सकते हो, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। और फिर कौन कब बोलेगा उससे। सर्कल टाइम एक्टिविटीज जहाँ टीचर और बच्चे एक साथ बैठ के टॉक शो जैसा ऐसे पास भी कर सकते हैं, तो सब लोग एक ही बराबर हो जाते हैं उसमें। तो आप टीचर्स का रोल हो जाता है फैसिलिटेशन का, आप पढ़ाने का रोल से हटके फैसिलिटेटर है, जो कि आजकल एनसीएफ एनईपी सब लोग बात कर रहे हैं कि टीचर्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। So teachers are supposed to facilitate a class. So I've already talked about pair share. Readers theater is where children read their parts instead of performing all the time, but there's intonation, there's language development which happens at the time. Similarly, you can have circle time where the facilitators and students sit together. I'm talking facilitators, I'm not saying teachers, where they are also part of the learning process. मेरे को एज अ टीचर ये समझ में आता है हमेशा कि मेरे को बहुत सीखने को मिलता है बच्चों से। आज भी जब मैं पढ़ाऊँ या मैं जब स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं बच्चों से। तो मैं अपने आप को फैसिलिटेटर मानती हूँ, ना कि एक टीचर जो पढ़ा रही है।
कॉरल रीडिंग जो बचपन से हमने किया इकट्ठे, उसमें भी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है. कॉरल रीडिंग इज समथिंग विच हैज ऑलवेज हैपेंड. So you learn intonation, language development, everything happens through choral. Turn and talk is जैसे आप यहाँ बैठे हो, पीछे बच्चे, अच्छा ये क्वेश्चन इस वाले बच्चे से पूछो, यहाँ से नहीं पीछे, तो वो मूवमेंट, क्लास मूवमेंट्स हो जाते हैं. अच्छा इसने ये बोला, चलो फिर आंसर दो. तो टर्न एंड टॉक. ग्रुप डिस्कशन ऑफ कोर्स, वो तो हमें सबको ही मालूम है. मॉक पार्लियामेंट जो होती है कि पार्लियामेंट का सिचुएशन, बट ये यूजुअली मिडिल स्कूल या 6 onwards ही है. Mock parliament is more effective in a senior class than in junior classes. स्टोरी बोर्डिंग, जहाँ कहानी, अभी भी किसी ने बताया था जब शुरू में मैम ने, कि हमने कहा ड्राइंग करो और वो पूरी कहानी को चित्रों के द्वारा, मैंने किया हुआ है ये एक्टिविटी, जहाँ बच्चों को ने पहले कहानी बनाई और उसको फिर एक एक बच्चे ने वो चित्र के द्वारा पूरी एक ग्राफिक या एनिमेशन बना दी. ब्लॉगिंग अगर हो सके तो व्हाई नॉट. वीडियो तो आजकल हम रील्स बना ही सकते हैं, तो बच्चे कोलैबोरेट होके रील्स भी बना सकते हैं एक अच्छे टॉपिक के बारे में जो आप लोग दोगे. पॉडकास्टिंग भी हो सकती है, जहाँ बच्चे इकट्ठे आए और पॉडकास्ट बनाए. इंटरव्यूज तो हैं ही कि जाके दादा दादी का इंटरव्यू लो. आप मेला भी कर सकते हो, जहाँ हर प्रांत का खाना इकट्ठा आएगा, उसके बारे में बात करो क्या क्या चीजें हैं. तो ये बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज हैं. फ्लिप क्लास की मैंने ऑलरेडी बात की थी इस बारे में भी. तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप कोलैबोरेशन में कर सकते हो. अभी आपके पास कुछ मेरे से क्वेश्चंस हैं, आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा. थैंक यू. तो अब हमारा फोटो तो शूट हो गया, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछेगा. ये हमारी असाइनमेंट है, ये 2 कहानियां हैं, हाउ टू वे एन एलिफेंट, और तो ये असाइनमेंट के लिंक है जहां आप जाके अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. नामिका, Siri, would you be able to suggest this? So you can scan this QR code. All of you can just scan this QR code and then it will be available. हम लोग even WhatsApp group में ये सब शेयर करेंगे. If you can see chat box में श्री लक्ष्मी ने सबको भेजा है, एक लिंक भेजा है श्री लक्ष्मी ने chat box में. Please check that out. उस लिंक को क्लिक कर लीजिए and then you have the assignments available. I request everyone. SL करके आपको चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है. श्री लक्ष्मी मैम हमारी टीम से हैं, कथा टीम से हैं. शी हैंडल्स ऑल द टेक्निकल डिटेल्स. मैम ने एक लिंक शेयर किया है इन द चैट बॉक्स. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू चेक द लिंक व्हिच श्री लक्ष्मी मैम हैज जस्ट शेयर्ड इन द चैट बॉक्स. Click on it. Please save it. That's the link where you'll have to submit the assignment.